اس نے حجلا روسی میں داخل ہوتے ہی اپنی پہلی رات دلہن کو جبڑے سے پکڑا اور دھاڑتے ہوئے بولا، بتاؤ کس حد تک گہرا تعلق تھا تمہارا میرے بھائی سے؟ کیوں اس نے عین رخصتی کے وقت طلاق نامہ تمہارے منہ پر مارا؟ ایسا کیا دیکھا تھا اس نے؟ بولو ورنہ تم جیسی لڑکی سے کیا نوید کہ اس نے کتنا رنگین وقت۔ وہ حق تک سی اسے دیکھتی گئی، اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی کہ وہ کیسے اس پر اس قدر گھٹیا الزام لگا سکتا تھا۔ وہ تو اسے مسیحا سمجھ رہی تھی کہ اس کے بھائی نے اپنی منکوہا کو عین رخصتی کے وقت طلاق دے کر اس کی ذات پر سوالیہ نشان لگا دیا تھا، اور اس نے آگے بڑھ کر اس کی عزت رکھی، اور اب ایسے سوال جواب وہ پھر پھنکارا تھا۔ آج رات تو پتہ چل ہی جائے گا کہ تم کنواری ہو یا نہیں۔ تم سے نکاح کے بعد لالا تم سے ملنے راتوں کو چھپ چھپ کر جاتا تھا اور فجر نہا کر ادا کرتا تھا، تو اس سب کا کیا مطلب ہوا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اب رونے کا کیا فائدہ؟ میں دوسروں کی استعمال شدہ چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ بے رحمی سے اس کے نزدیک آتے ایک بار پھر پھنکارا تھا، اگر آج کی رات تم پاک دامن ثابت نہ ہوئی تو صبح طلاق نامہ منہ پر مار کر دھکے دے کر اس گھر سے۔ آج وہ بے انتہا خوش تھی، خوشی کی شدت کی وجہ سے اس کا دل لرز رہا تھا۔ آنے والے وقت کا احساس کر کے اس کا دل بے ترتیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ آج وہ کیوں نہ خوش ہوتی؟ سالوں پرانی خواہش آج پوری ہونے جا رہی تھی۔ آج وہ ہمیشہ کے لیے زہیب کی ہونے جا رہی تھی اور زہیب اس کا ہونے جا رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان سارے فاصلے آج مٹنے والے تھے۔ وہ پور خود کو زہیب کے لیے سجانے والی تھی۔ اس کی وارفتگیاں، اس کے جذبے لٹاتی نظریں، اس کی محبت بھری سرگوشیاں، باتیں، وہ سب کچھ یاد کر کے وہ خود ہی میں سمٹ رہی تھی۔ اندیکھے خواب اس کی آنکھوں میں چلملا رہے تھے، اور تبھی اس کی ماں اس کے پاس آئی۔ عشاء نے نظر اٹھا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا، ان کے چہرے کے تاثرات غیر معمولی تھے۔ عشاء سمجھ نہیں پائی کہ آخر اس کی ماں کے چہرے کے تاثرات یکدم اتنے پتھریلے کیوں ہو گئے۔ وہ کیوں قہر بھری نظروں سے عشاء کو دیکھ رہی تھی؟ وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی اپنی ماں کا انداز دیکھ کر۔ تھوڑی دیر پہلے تو اس کے ساتھ کتنی محبت اور شفقت سے پیش آ رہی تھی، اسے گلے سے لگا کر خوب رو چکی تھی، اسے دلاسے دیے تھے، تسلیاں دی تھی اور بہت سی دعائیں دی تھیں۔ اب عشاء بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا ہے ماں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا تو انہوں نے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ پڑے جھٹک دیا۔ جو تم نے کرنا تھا کر دیا، اب مزید تماشا مت کرنا، ہمارا پہلے ہی بہت تماشا بن چکا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے، سب لوگوں کے سوالوں کے کیا جوابات دیں گے۔ تمہاری جیسی بیٹی کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ جمیلہ بیگم کے منہ سے یہ باتیں سن کر عشاء اپنی جگہ پر ہکا بکا کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ امی کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر ایک کمرے میں لے گئیں، کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہاں پر عشاء کے ساس سسر تھے، زہیب کا چھوٹا بھائی سارم، مولوی صاحب اور عشاء کے ماں باپ بھی وہیں پر کھڑے تھے۔ سر جھکائے ہوئے باپ کو دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ جمیلہ بیگم اسے بازو سے پکڑ کر لے گئی تھی، پھر سارم کے پاس پٹک کر کہنے لگی کہ آج تمہارا نکاح ہے۔ عشاء کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ ایک بار پھر سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا نکاح؟ مگر میرا نکاح تو زہیب کے ساتھ ہو چکا ہے، پھر یہ نکاح؟ تبھی اس کی اپنے باپ پر نظر پڑی، جس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اب اس نے اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر سے اسے صوفے پر واپس پٹکا تھا۔ جیسا تمہیں کہا ہے ویسا کرو، تمہاری بد چلنے کی وجہ سے زہیب تمہیں چھوڑ کر جا چکا ہے، اور یہ ان لوگوں کا بڑا پن ہے جو پھر بھی تمہیں اپنانے کے لیے، تمہیں بیانے کے لیے آ گئے ہیں۔ ورنہ جس گھر کا ایک بیٹا رخصتی والے دن اپنی منکوہا کو طلاق دے کر چلا جائے، وہ لوگ تو اس لڑکی کی شکل پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے۔ نہ جانے کون سے ایسے گل کھلائے ہیں تم نے جو زہیب تم سے اتنا بدظن ہو گیا ہے۔ یہ نکاح تنسیخ ہو گیا ہے، اب تمہارا نکاح سارم کے ساتھ ہوگا، اور اسی کے ساتھ تمہاری رخصتی بھی ہوگی۔ چپ چاپ یہ نکاح قبول کر لو۔ عشاء نے نظر اٹھا کر سارم کی طرف دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیا تھا اس کی نظروں میں کہ عشاء کا پورا وجود کانپ کر رہ گیا تھا۔ اس کے پاس اس بات کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کی بات مان لیتی۔ نکاح تو ہو گیا تھا، اور یہ نکاح بند کمرے میں ہوا تھا۔
कमरे में क्या हो रहा था बाहर मेहमान कुछ भी नहीं जानते थे, मगर अचानक से ईशा की माँ का उसे कमरे में लेकर जाना, दरवाजा बंद कर देना सब लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा था। सब लोग अपने अपने अंदाजे लगा रहे थे और फिर रुखसती के वक्त जब सारिम अजीब सी नजरों से उसे देखता हुआ स्पार्ट चेहरे के साथ उसके साथ आकर बैठा, तो सब लोगों के मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए थे। ईशा का निकाह तो जोहेब के साथ हुआ था। एन रुखसती वाले दिन ये दूल्हा कैसे बदल गया था? जोहेब कहाँ था और उसने ईशा को क्यों कर छोड़ा? कोई इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ईशा के दिल में तरह तरह के सवालात उठ रहे थे, मगर कोई नहीं था जो इन सवालों का जवाब देता। सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। दिल खून के आंसू रो रहा था। क्या कुछ नहीं सोचा था उसने आज के दिन के हवाले से, और क्या हुआ था उसके साथ कि उसका मर जाने को जी जा रहा था। ससुराल में भी उसका किसी ने अच्छे तरीके से खैर मकदम नहीं किया था। स्पॉट से अंदाज में उसकी सास ने कमरे में पहुंचा दिया था, और अमूमन जो दुल्हन के कमरे में हल्ला गुल्ला महसूस होता है, वो हल्ला गुल्ला उस वक्त उसके कमरे में नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ हो। एक तरह से ये खामोशी और तन्हाई ईशा के हक में बेहतर साबित हुई थी, क्योंकि उस वक्त वो किसी का सामना नहीं करना चाहती थी। लोगों की खोजती हुई नजरों और चुभते हुए सवालों का सामना नहीं कर सकती थी। कितने घंटे उसे यूं ही बीत गए थे। ना तो किसी ने कमरे में झांक कर देखा था, ना ही किसी ने खाने को पूछा था। और फिर रात के वक्त मुलाजमा उसके कमरे में खाने की ट्रे रखकर चली गई थी। ईशा ने उसे मुखातिब करना चाहा, वो उससे जोहेब के बारे में पूछे, मगर फिर ये सोचकर खामोश हो गई कि वो मुलाजमा है। अब वो भला जोहेब के बारे में उसे क्या बता सकती है। खाने के बर्तन जूं के तूं उठाकर उसने साइड टेबल पर रख दिए थे, और फिर सारिम कमरे में दाखिल हुआ। कमरे का दरवाजा बंद करके वो उसके पास आकर बैठ गया, उसे खोजती हुई निगाहों से देखने लगा। उसे देखकर ईशा की निगाहें झुक गई थीं। ना जाने क्या वजह थी कि उसके चेहरे की तरफ, उसकी आंखों के तासुरात की तरफ वो देख नहीं पा रही थी। कितनी मोहब्बत करती थी तुम जोहेब से? ईशा ने सर उठाकर हैरत से उसे देखा। ये कैसा सवाल हुआ? कमरे में आने के बाद अपनी बीवी से पहला सवाल उसने यही पूछा था। ईशा की खामोशी पर उसे गोया गुस्सा आ गया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा जोहेब के साथ कैसा रिश्ता था, किस हद तक ताल्लुक था तुम दोनों में, कितनी मोहब्बत करती थी तुम अपने उस आशिक के साथ? वो उसका चेहरा अपने हाथों से ऊंचा करते हुए बोला, तो ईशा गुस्से से कहने लगी कि वो मेरा आशिक नहीं था, मेरा निकाह हुआ था उसके साथ, मेरा शोहर था वो। और मुझे ये बताओ कि वो कहाँ है, किस हाल में है? मैं नहीं मानती कि जुहेब ने कुछ ऐसा किया होगा। वो मुझे नहीं छोड़ सकता, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। उसका ये कहना ही था कि सारिम ने उसका चेहरा अपने हाथ में ले लिया, जोर से उसके चेहरे के जबड़े को दबाने लगा। कुछ शर्म हया है तुम में? अपने शोहर के सामने उसी के भाई का नाम लेते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? माना कि तुम्हारा उसके साथ पहले निकाह हो चुका था, मगर अब तुम मेरे निकाह में हो, मेरी बीवी हो। मेरा एहसान मानो। मेरे भाई ने तुम्हें ऐन रुखसती के वक्त धुतकार दिया, तुम्हें तलाक देकर चला गया, और ये मेरा ही ज़र्फ है, मेरी कुर्बानी है, ये मेरा बड़ापन है जो मैंने तुम्हारी जैसी धुतकारी हुई बदचलन लड़की को अपनाया, उसे नाम दिया। बजाय इसके कि तुम मेरा एहसान मानो, मेरा शुक्रिया अदा करो, तुम मुझसे सवाल जवाब कर रही हो कि मेरा भाई कहाँ है। अब वो दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबाने लगा था। उस वक्त वो बहुत जुनूनी लग रहा था। आंखों में सुर्ख डोरे थे, चेहरे के तासुरात भी सख्त स्पॉट थे। ईशा अपने आप को छुड़वाने की नाकाम कोशिश करने लगी थी। एकदम वो जोर जोर से खांसने लगी, उसका सांस रुकने लगा था। तब सारिम ने उसे छोड़ दिया। कितने पल लगे थे ईशा को खुद को संभालने में। उसने एक नफरत भरी नजर सारिम पर डाली। सारिम अलमारी से कागजात लेकर आ गया। देख लो, तसल्ली कर लो अपनी। तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो फिर ये क्या है? वो तलाक के कागजात हैं जिनमें सारिम के नाम के दस्तखत, उसका अंगूठा लगा हुआ था। उसने वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि मेरी बीवी बदचलन है, मुझे उसका किरदार मशकूक लगता है, इसलिए मैं उसे तलाक दे रहा हूँ। कितनी आसानी से जुहेब ने अपनी मोहब्बत को खुद से दूर कर दिया था, उस पर बदचलनी का इल्जाम लगा दिया था। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि ये मुआशरा उसकी मोहब्बत के साथ क्या सलूक करेगा। लोग तो धुतकारी हुई औरत को
तरन वाला समझने लगते हैं, और अगर औरत का शोहर उसे बदचलन करार दे दे तो कोई उस औरत के सर पर इज्जत की चादर डालकर उसे ढांपने वाला नहीं होता, बल्कि सब लोग ही उसे नोचने खसोटने पर उसे बेइज्जत करने पर तैयार होते हैं। वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। सारिम उसे बेतासुर नजरों से देख रहा था। एक बार फिर उसके रूबरू आकर बैठ गया। बताओ कि तुम उसके ताल्लुक में किस हद तक गई हो? क्या कुछ नहीं किया होगा तुमने उसके साथ? मैं नहीं जानता तुम्हारे जैसी लड़की को क्या। तुमने तो खूब उसके साथ रंगीन वक्त गुजारा होगा, अपने आप को उसे सौंपा होगा। मुझे सच सच बता दो, अपने मुंह से बता दो कि तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है, वरना मैं तुम्हारे वजूद से तुम्हारी बदचलनी का सबूत हासिल कर लूंगा। और अगर मुझे तुम्हारी बदचलनी का सबूत मिल गया तो मैं सुबह तुम्हारे मुंह पर तलाकनामा मार दूंगा, तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकाल दूंगा। ईशा उसे देखती रही, फिर कहने लगी कि तुमने जो करना है कर लो। तुम्हारे भाई ने भी मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तलाक दे दी, तो ये बात मेरे लिए कोई अनोखी नहीं होगी कि तुम भी मुझे छोड़ दो, तुम भी मुझे तलाक दे दो। जो करना है कर लो। वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई थी और सारिम ने दोबारा उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। तुम्हें शायद मेरी बात की समझ नहीं आ रही है, तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि मेरा तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक है। इस वक्त तुम किस रिश्ते की हैसियत से मेरे सामने मौजूद हो। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता हूँ। मैं इस बात पर मोहर लगा दूंगा कि मेरे भाई ने सब कुछ सच कहा था। तुम वाकई में अच्छे किरदार की लड़की नहीं हो। तुम ऐसी हो कि तुम्हें कोई भी इज्जत से अपने घर में बीवी बनाकर नहीं रख सकता। उसके अंदाज के साथ साथ अल्फाज भी सख्त थे जो ईशा की रूह पर लग रहे थे। वो सोच रही थी कि सारिन ये महज उसे धमकाने की बात कर रहा है। अगर उसने तलाक देनी होती, छोड़ना ही होता, तो वो उसके साथ निकाह क्यों करता, रुखसती करवाकर इस घर में क्यों लेकर आता। सारिन, कल तक तो तुम मुझे भाभी और बाजी कहते नहीं थकते थे, इतनी इज्जत करते थे मेरी, और आज तुम किस अंदाज में मुझसे बात कर रहे हो। तुम्हारी नजरों का मफहूम बदल गया है। तो ठीक है, हमारे दरमियान रिश्ते की नौयत बदल गई है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी इज्जत करना छोड़ दो। जिस लड़की को उसका आशिक निकाह करके रुखसती करने से पहले तलाक दे दे, तो इस बात का मतलब क्या होता है कि वो लड़की इस काबिल ही नहीं है। मगर फिर भी मैं एक आला ज़र्फ इंसान हूँ जिसने अपने माँ बाप की माने बगैर तुम्हें पनाह दे दी। अब तुम अपने मुंह से अपने काले करतूत बता दो मुझे, वरना अगर मैंने अपने तरीके से सबूत हासिल किया तो मैं तुम्हें सब में रुसवा कर दूंगा। और एक बार फिर से खतरनाक इरादों से ईशा की तरफ बढ़ा था। उसके बाजू को अपने हाथों में दबोचने लगा। उसके जज्बात बदलने लगे, आंखों के तासुरात भी बदलने लगे। ये देखकर ईशा बुरी तरह से घबरा गई थी। वो उसके बदलते तासुरात का मतलब खूब समझने लगी थी। मेरी बात सुनो, तुम जानते हो कि मैं जुहेब के निकाह में हूँ और हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ईशा का ये कहना ही था कि उसने उसे जोर से धक्का दिया। फिक्र मत करो, सारिम इस्तेमाल की हुई चीज को कभी भी नहीं अपनाता। तुम महज एक इस्तेमाल शुदा चीज हो। मेरे नजदीक इससे ज्यादा तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है कि तुम मेरे घर में किसी फालतू सामान की तरह पड़ी रहोगी। वो कमरे से बाहर चला गया था। ईशा फूट फूट कर रो पड़ी थी। ख्वाब यूं भी चकनाचूर होते हैं, इंसान यूं भी आसमान से जमीन पर मुंह के बल आकर गिरता है। इस बात का एहसास ईशा को आज हुआ था। एक बार फिर से वो जुहेब की मोहब्बत को याद कर कर रो पड़ी थी। कितने वादे किए थे उसने, साथ मरने जीने की कस्में खाई थी, और अब ऐसा क्या हुआ कि बिना किसी कसूर के, बिना किसी गलती के वो उसे छोड़कर चला गया था। ईशा का गम बहुत बड़ा था। कहते हैं कि नींद तो कांटों पर भी आ ही जाती है। ईशा बहुत दुखी थी, रो रही थी, मगर उसके बावजूद नींद की देवी बिलाखिर उस पर मेहरबान हो ही गई थी। रात का तीसरा पहर था जब उसे एक अजीब से लम्स का एहसास हुआ था। हर बढ़ाकर आंखें खोली, उसके पास कोई और नहीं बल्कि सारिम था, जो उस वक्त उसके इंतहाई करीब था। उसकी सांसें ईशा को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो बुखलाकर पीछे हटी तो सारिम जैसे होश की दुनिया में वापस आया।
अब तुम क्यों आए हो यहाँ पर? उसके मुंह से कांपती आवाज निकली थी। फिक्र मत करो, तुमसे हक वसूल करने के लिए नहीं आया, बस तुम्हें ये कहने के लिए आया हूँ कि तुम खुद मुझे बता दो कि तुम्हारा जुहेब के साथ कैसा ताल्लुक था। एक बार फिर से उसने वही सवाल दोहराया और ईशा का दिल चाहा कि वो अपना सर पीट ले। जो भी था, अब सारिन के वो निकाह में थी, वो उसका शोहर था। ईशा जानती थी कि उसे अपने मुंह से ऐसी कोई भी बात नहीं निकालनी जो उसके शोहर को उससे मशकूक कर दे। आज जो कुछ हो रहा था, सब कुछ ही उसकी समझ से बाहर था। अब की बार ईशा खामोश रही। तब सारे मुझसे कहने लगा कि मगर मैं अपने भाई जैसा घटिया इंसान नहीं हूँ कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं, तुम्हें छोड़ दूं, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर लेकर जाऊंगा, सबसे दूर, इतना दूर कि तुम्हें किसी की चुभती हुई नजर, अपनी तरफ उठती हुई तंजिया निगाह देखने को नहीं मिलेगी। ईशा उसके पल पल बदलते मूड पर हैरान ही तो रह गई थी। कहाँ तो वो धमकियां लगा रहा था और कहाँ मोहब्बत से पेश आ रहा था। उसके दिल में भी ये तजस्सुस था कि आखिर ज़ुहैब कहाँ है, उसे छोड़कर क्यों चला गया है और वो उसे इतना बदजन क्यों हो गया था। ऐसी कौन सी उसने ईशा के खिलाफ सारिम के साथ बातें की थी जो सारिम को इस दर्जा उससे बदजन कर गई थी। इस सब का जवाब उसे सारिम ही दे सकता था, मगर ऐसा तभी मुमकिन था जब सारिम अपने घर वालों से अलग होता, वरना ऐन मुमकिन था कि घर में अपने माँ बाप की मौजूदगी में वो उसे फिर से धुतकार दे, उसे सच ना बताए, माँ बाप की बातों में आकर अपने इस फैसले को बदल दे। सारिम कहने लगा, चलो अभी हम हनीमून के लिए चलते हैं, मैं तुम्हें सबसे दूर लेकर जाना चाहता हूँ। ईशा कदर मुतमईन हो गई थी, वो सबकी नजरों का सामना कर भी नहीं सकती थी और साथ ज़ुहैब के बारे में भी तो पूछना था। उसके लिए बेहतर यही था कि तन्हाई में वो प्यार से सारिम को बहलाकर ये सारी बातें उगलवा लेती। जब वो लोग गाड़ी में बैठने लगे तो तब सारिम की माँ वहां पर आई। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? फजर का वक्त हो रहा था। उस वक्त तकरीबन वो नमाज के लिए ही उठी थी। उन दोनों को देखकर वो कदरे चौंक गई। सारिम कहने लगा, मैं अपनी बीवी के साथ हनीमून पर जा रहा हूँ, जल्दी हम लोग वापस आ जाएंगे। उनका तो चेहरा गुस्से से तन गया था। इस लड़की ने पहले मेरे एक बेटे को मुझसे दूर किया, मेरा घर बर्बाद कर दिया, न जाने मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा, और अब ये तुम्हें हमसे दूर लेकर जा रही है। ये बदचलन लड़की है जिसे ज़ुहैब ने इसके मुंह पर तलाक मार दी थी। तुम भी ऐसा ही करो, दफा करो, इसे घर से निकाल दो। सारिम ने गहरी सांस ली और एक सफेद चादर शॉपर में लपेटकर अपनी माँ के हवाले की। माँ, मैंने इस बात का सबूत ले लिया है कि ये लड़की पाक दामन है। इसका इससे पहले किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। ईशा उस सफेद चादर का मतलब खूब समझती थी। वो तो हैरान ही रह गई थी, सारिम ने ये क्या किया था। पहले उसे माँ बाप की नजरों में सुरखरू किया, ज़ुहैब उसे तलाक देकर चला गया और सारिम ने उसे अपना लिया, तमाशा बनने से बचा लिया और अब अपनी माँ को उसकी पाकदामनी का सबूत दिया। उस सफेद चादर पे न जाने उसने किसी स्याही का इस्तेमाल किया था या किस चीज का, इस बारे में मैं बेखबर थी, मगर उसे इतना मालूम हो गया था कि सारिम एक अच्छे दिल का इंसान है जो उसे वाकई में बहुत मोहब्बत करता है। बस वक्ती तौर पर वो गुस्से में आ गया था, जज्बाती होकर वो ईशा पर बरस पड़ा था, मगर वो एक अच्छे दिल का इंसान है, ज़ुहैब की तरह नहीं है जो उसे छोड़कर चला गया। पहली बार उसका ज़ुहैब की तरफ से दिल खट्टा हुआ था और उसके दिल में उसके लिए नफरत पैदा हुई थी, मगर अब वो दिल ही दिल में इस बात पर मुतमईन थी कि सारिम मुझे सब लोगों से दूर ले जाएगा, जहाँ पर कोई उस पर तंज करने वाला नहीं होगा, ना ही उस पर गुस्सा करने वाला होगा। जब वो लोग थोड़े से दूर आए तो सामने का मंजर देखकर जहाँ पर ईशा हैरान रह गई थी, वहीं पर सारिम की सीटी भी गुम हो गई थी। वो गाड़ी ऐन उनके सामने सड़क के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई थी, यूं जैसे उसके पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं रहा था। सामने वाली गाड़ी में ज़ुहैब था। सारिम को संभलने का मौका दिए बगैर वो फौरन से गाड़ी से नीचे उतरा। सारिम की साइड वाली खिड़की खोलकर उसे घसीटकर बाहर निकाला। घटिया आदमी, मेरे साथ धोखा किया तुमने, मुझे धोखे में रखा, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन लिया। भाई होकर तुमने मेरे साथ दुश्मनी क्यों की? क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? वो सारिम को बुरी तरह से मारे जा रहा था। ईशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों भाइयों को क्या हुआ है और ज़ुहैब वो अब तक कहाँ था। पहले उसने ईशा को तलाक दे दी, अब उसकी शादी के बाद एकदम से सामने आ गया और उसी के शोहर को मारने लगा। आखिर ज़ुहैब चाहता क्या है? ईशा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था।
वो भी फौरन अपनी गाड़ी से नीचे उतरी थी। वो उन दोनों के पास आई, मगर तभी उसे जोर का धक्का लगा था। वो पेट के बल जमीन पर गिर गई थी। अब खौफजदा नजरों से उन दोनों को देखने लगी थी, जो किसी दुश्मन की तरह एक दूसरे पर झपट पड़े थे, एक दूसरे को मार रहे थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इस मौके पर क्या करे। तभी सारिम फौरन से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, तो वहां से रिवॉल्वर निकाल लिया। दोनों के दरमियान हाथापाई होने लगी थी। अगले ही लम्हे फायरिंग की आवाज गूंजी थी, जिसे सुनकर ईशा ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए थे। फटी फटी आंखों से वो सामने देख रही थी, जहां पर सारिम जमीन पर गिरा हुआ था। पल भर में ही वो मौत के मुंह में चला गया था। ईशा बेयकीनी से उसके साकित पड़े वजूद को देखने लगी थी। कभी वो सारिम की तरफ देखती, तो कभी जुहेब की तरफ। जुहेब भी हैरान परेशान था। ये उससे क्या हो गया था? उसने अपने ही भाई को खत्म कर दिया था, मगर ये सब गलती से हुआ था। और फिर जब सारिम को घर ले जाया गया, तो पूरे घर में जैसे कोहराम आ गया था। क़यामत सी बरपा हो गई थी। जवान बेटे की मौत की वजह से उसके माँ बाप तो गोया पागल हो रहे थे। ईशा भी उसकी मैयत के पास बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। कितनी बदनसीब थी वो। एक ही दिन में वो मुतल्का हुई थी, और फिर अगले ही दिन वो बेवा भी हो गई थी। जो औरत शादी के पहले दिन ही बेवकी की चादर ओढ़ ले, उसे जमाना सब कदम मनहूस और न जाने कौन कौन से अलकाबात से नवाजता है। अब यही सब ईशा के साथ भी हुआ था। सब औरतें उसे देखकर सरगोशियां कर रही थीं। सारिन की माँ उसे कोस रही थी। ये मनहूस मेरे घर में आई, मेरे बेटों को खा गई। पहले एक बेटे को मुझसे दूर किया, न जाने वो कहाँ चला गया, और अब दूसरे बेटे की जान ही ले ली। मेरा बेटा इसकी वजह से मौत के मुंह में चला गया। दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। वो उस पर बुरी तरह से झपट पड़ी थी। उसे अपने दोनों हाथों से मारने लगी, उसके बाल नोचने लगी। बहुत मुश्किल से औरतों ने ईशा को रुबीना की गिरफ्त से छुड़वाया था। ईशा रोते हुए अपने कमरे में आ गई थी। सारिन का वो कमरा ही उसके लिए पनाहगाह था। कल तक वो उस कमरे से भाग जाने का सोच रही थी, और अब उसे लग रहा था कि इस छोटे से कमरे में ही उसे पनाह मिल सकती है। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बौछार आ गया है। इस घर में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया है, और इस तूफान से अपना बचाव सारिन के कमरे में आकर ही कर सकती थी। अब वो बुरी तरह से रो रही थी, अपनी बदनसीबी को कोस रही थी। वो अकेली थी, कोई उसके पास नहीं था। फिर जब सारिम का जनाजा लेकर जाया गया, तो तब भी रूबीना के कोसने, बद्दुआएं देने और बहन करने की आवाजें उसके कानों से टकरा रही थीं। उस औरत का गम तो बहुत बड़ा था। जिस औरत का जवान जहान बेटा इस दुनिया से चला जाए, उस औरत के गम और सदमे का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। उसके बाद ईशा ने जोहेब को नहीं देखा था, मगर इतना उसे अंदाजा था कि वो अब इसी घर में ही मौजूद था। माँ बाप ने उसे भी बहुत बुरा भला कहा कि उसने अपने ही भाई की जान क्यों ले ली। उसने अपनी सफाई में यही कहा कि ये सब कुछ सारिम ने किया था। वो ही रिवॉल्वर निकाल कर लेके आया था। उसने जुहेब पर पिस्टल तान ली थी। जुहेब का ऐसा कोई इरादा नहीं था, और ये जो कुछ भी हुआ है, न दानिस्तगी में हुआ है। जुहेब ने इरादी तौर पर सारिम की जान नहीं ली। ईशा अब उसी कमरे में महसूर होकर रह गई थी। अपनी माँ से जब उसने साथ चलने की बात की, तो वो उसे बुरी तरह से डांट गई। मेरी बात सुनो ईशा, औरत इद्दत अपने शौहर के घर में ही पूरी करती है। तुम नई लड़की आई हो, जो नया दस्तूर निकाल कर जमाने में लेकर आ गई हो। तुमने इद्दत अपने ससुराल में अपने शौहर के घर में ही करनी है। तुम्हें अब हमारे घर में जगह तब तक नहीं मिल सकती, जब तक तुम्हारी इद्दत मुकम्मल नहीं हो जाती। तब तक तुम यहाँ पर रहो। माँ की बेहिसी पर वो एक बार फिर से फूट फूट कर रो पड़ी थी। आखिर उसने ऐसा क्या किया था जो अपने उससे इस कदर नफरत करने लगे थे। वो नमाज पढ़ती, रो रो कर खुदा से अपने गुनाहों की दुआ मांगती। जोहेब ने भी उससे बात करने की कोशिश की। उस दिन भी वो नमाज पढ़कर जाए नमाज लपेट कर अपने बिस्तर पर लेटने लगी थी। जब दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी, दरवाजा खुला, तो सामने जुहेब खड़ा था। उसने फौरन से दरवाजा बंद करना चाहा, मगर जुहेब ने दरवाजे के दरमियान पांव रखकर ईशा को अपने इरादे से बाज रहने पर मजबूर कर दिया। कमरे में आया तो ईशा पूरी तरह से बुखला गई थी। आप यहाँ से चले जाएं। आप नहीं जानते कि अगर किसी ने आपको यहाँ पर देख लिया, मुझसे बात करते हुए देख लिया, तो न जाने क्या गजब हो जाएगा। आपकी अम्मी तो मेरी जान लेने के दर पर रहती हैं। वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब अगर उन्होंने ये सब देखा, तो मुझे वो धक्के देकर घर से बाहर निकाल देंगी।
ज़ुहैब कहने लगा, मेरी बात सुनो, तुम्हें इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता। बेफिक्र रहो, अभी मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। एक ऐसा सच है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम इस सच से लाइल्म हो। ईशा ने हाथ रोककर उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। तुमने मुझसे निकाह किया, फिर मुझे बेवा किया और अब तुम अपनी सच्चाई लेकर आ गए हो। आखिर मजीद क्या करना बाकी है मेरे साथ? इससे ज्यादा तुम क्या बुरा करना चाहते हो मेरे साथ? तुमने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरे अपने मेरी शक्ल तक देखने के रवादार नहीं है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ज़ुहैब उससे पहले कोई बात कहता, बाहर खटकने की आवाज सुनाई दी। ईशा बुरी तरह सहम गई। फिर ज़ुहैब छुपता छुपाता कमरे से बाहर चला गया था। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। एक बार फिर से रो पड़ी थी। ज़ुहैब जब से उसकी जिंदगी में आया था, उसकी जिंदगी को तो गोया एक इम्तहान गाह बना दिया था। एक के बाद एक आजमाइश उसके सर पर आन खड़ी होती थी। शुक्र था कि अभी किसी ने ज़ुहैब को कमरे में आते हुए या बाहर निकलते हुए नहीं देखा था, वरना एक और कयामत आ जाती। अब ईशा की इद्दत मुकम्मल हो गई थी। अब वो उस घर से रुखसत बांधने वाली थी। वो नहीं जानती थी कि माँ बाप के घर में उसके साथ क्या सलूक होने वाला है। वो घर अब पहले जैसा नहीं रहा। घर में भाभी ने तो उसकी नाक में दम करके रख देना था और बाकी रिश्तेदार ताने देकर उसकी जान ले लेते। उनकी चुपती हुई बातें, नजरें वो भला कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? आज वो उस कमरे को देख रही थी। यहाँ पर आज उसकी आखिरी रात थी। कल उसने चले जाना था। तभी दरवाजे पर खटके की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलकर ज़ुहैब कमरे में दाखिल हुआ था। उसे देखकर ईशा अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। तुम फिर आ गई यहाँ पर? तो तुम क्यों बार बार मेरे रास्ते में आ जाते हो? मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ, मुझे तुमसे कोई बात करने में दिलचस्पी नहीं है, ना मैं तुम्हारी कोई बात सुनना चाहती हूँ। तुमने जो करना था कर चुके हो, मजीद क्या करना चाहते हो? ज़ुहैब उससे दुख भरी नजर से देखता रहा। देखो ईशा, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। मगर ईशा ने उसे दो टोक जवाब दिया। मेरी जिंदगी को खेल तमाशा नहीं है ज़ुहैब, मगर मुझे लगता है कि तुमने मुझे खिलौने से ज्यादा कभी कोई हैसियत दी ही नहीं। जब जी चाहा रिश्ता जोड़ लिया, जब जी चाहा इल्जाम लगाकर रिश्ता तोड़ दिया। मैं मजीद तुम्हारे किसी खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मुझे मेरी जिंदगी मेरी मर्जी से जीने दो। ज़ुहैब उसके करीब आकर खड़ा हो गया। ईशा, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जो तुम्हें बताया गया है, जो तुम्हें दिखाया गया है, वो सब सच नहीं है। मैं हमेशा से तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहता था। मैं तुमसे नफरत करने के बारे में, तुम्हें बदनाम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और ये सब बातें तो मुझे बाद में मालूम हुई हैं। तुम क्या जानो कि मैं पूरी पूरी रात तड़पता रहा हूँ तुम्हारी तकलीफ का एहसास कर करके। तुम क्या जानो कि मुझे रातों को नींद नहीं आती जब मुझे तुम्हारे आंसू बेचैन करते हैं, जब तुम्हारी तकलीफ मुझे अंदर से चोट लगाती है। उसके चेहरे के तासुरात से लग रहा था कि वो सच कह रहा है और उस वक्त भी उसे अपने जज्बात को कंट्रोल करने में मुश्किल पेश आ रही है। ईशा अब की बार खामोश हो गई थी। वो फिर से गोया हुआ, देखो, जब तक तुम सच नहीं जानोगी तब तक तुम मुझसे नफरत करती रहोगी, तुम मुझे गलत समझती रहोगी। एक बार सच जान लो, तब तुम्हें मालूम हो जाएगा मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ पहुंचाना नहीं था। ईशा उसे देखती रही। अच्छा बताओ, ऐसा कौन सा सच है जिसको सुनकर मैं तुम्हारे साथ शादी करने पर तैयार हो जाऊंगी, अपनी सारी तकलीफें, सारे दुख दर्द भूल जाऊंगी? वो तंजिया अंदाज में गोया हुई। ज़ुहैब उसके तासुरात को बगौर नोट कर रहा था। वो बहुत गुस्से में थी। उसका गुस्से में आना बनता भी था। जो कुछ उसके साथ हुआ था, ये तो उसकी हिम्मत थी, उसके असाब मजबूत थे जो ये सब बर्दाश्त कर रहे थे। अगर उसकी जगह कोई कमजोर लड़की होती तो वो कब की अपनी जान ले चुकी होती, कोई भी उल्टा सीधा कदम उठा चुकी होती। मगर वो ईशा थी जो बहुत मजबूत और बहादुर थी। ज़ुहैब कहने लगा कि मैं हमेशा से ही तुमसे मोहब्बत करता था, मगर हमेशा ये सोचकर मैंने अपने आप को तुम्हारी तरफ बढ़ने से रोक दिया कि तुम पता नहीं मुझे कबूल भी करोगी या नहीं। तुम्हारे अम्मी अब्बू ना जाने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे भी या नहीं। और मेरे माँ बाप को भी इस बात पर बहुत सारे खदशात थे। अम्मी का कहना था कि तुम इकलौती बहन हो, आधी जायदाद की वारिस हो, तुम नकचिड़ी भी हो गई हो, हमारे साथ उस घर में एडजस्ट नहीं कर पाओगी। मगर जब तुम्हारे बाबा ने खुद ही मेरे माँ बाप से तुम्हारे और मेरे निकाह की बात की
तो तुम यकीन नहीं करोगी, वो पूरी रात में खुशी से सो नहीं सका था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं इतना खुश नसीब भी हो सकता हूँ कि मैंने जिससे चाहा, जिसके साथ जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसे अपने रब से दुआओं में मांगा, वो मुझे मिल गई थी, मुझे हासिल हो गई थी। मेरी खुशनसीबी का इससे बढ़कर और क्या सबूत होगा। और फिर तुम मुझे मिल गई, हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में शामिल हो गई। मैंने तुम्हें निकाह वाले दिन देखा तो मुझे तुम थोड़ी सी बेचैन महसूस हुई थी, मगर फिर मैंने उसे अपना वहम समझकर सर से झटक दिया था। मगर अगले दिन मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। जब मैं तुम्हें बार बार कॉल करता रहा, तुम्हें मैसेज करता रहा, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मैं बेताब हो रहा था, तुम्हें अपनी बेताबियां और अपनी मोहब्बतें बताना चाहता था, और तुम खामोशी से मेरे मैसेज सुन रही थी, मगर तुम मेरी बात का जवाब नहीं दे रही थी। ना तुमने मुझे मेरे किसी मैसेज का रिप्लाई किया और ना मेरी कॉल उठाई। तब मैं झुंझलाने लगा था कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? क्या तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई है? उस दिन भी यही सब बैठा सोच रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, मैं कैसे तुम्हारे साथ बात करूं। तब उस दिन सारिम मेरे पास आया। क्या सोच रहे हैं भाई, आप इतने खामोश क्यों हैं? सारिम मेरा भाई कम और दो ज्यादा था। अपने दिल की हर बात मैं सारिम को बताया करता था। सारिम मेरी तुम्हारे साथ मोहब्बत से आगाह था। अब मैंने ये सारे खदशात भी उसके साथ बयान कर दिए थे कि मुझे लगता है कि तुम इस रिश्ते पर खुश नहीं हो। सारिम कुछ देर खामोश हो गया, फिर कहने लगा कि अगर आप कहें तो मैं भाभी से बात करूं, मैं पता लगाऊं कि उनके दिल में क्या चल रहा है। मुझे लगता है उनके माँ बाप उन्हें आपके साथ बात करने पर कभी भी नहीं रोकेंगे। शायद भाभी खुद ही आपसे बात नहीं करना चाहती। सारिम की बात ने मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था कि तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहती हो। हम दोनों के दरमियान तो इतना करीबी रिश्ता था, इतना खूबसूरत, जो दुनिया के सारे रिश्तों में सबसे बढ़कर था। क्या तुम तक मेरी मोहब्बत की आंच नहीं पहुंची थी? जो तुम मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे रही थी। कुछ दिन के बाद सारिम मेरे पास आया। वो परेशान लग रहा था, उसके चेहरे के तासुरात भी बहुत संजीदा से थे। उसे देखकर मैं हैरान रह गया। क्या बात है सारिम, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? वो मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा कि भाई एक बात है जो आपको बताना जरूरी भी है, मगर मैं आपको बता भी नहीं पा रहा। मुझे डर है कि आपको ये बात सुनकर गम का एहसास होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस खबर को बर्दाश्त ना कर पाएं, मगर ये आपकी जिंदगी का मामला है, मैं आपको धोखे में नहीं रख सकता। सारिम की बातें मुझे उलझा रही थी। मैं पहले ही परेशान था, तुम्हारा रवैया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और ऊपर से सारिम की आधी थोड़ी बातें तो मुझे बिल्कुल ही पागल कर रही थी। सारिम, खुदा का वास्ता है, जो कहना है जल्दी से कहो और खुलकर मुझे बताओ कि बात क्या है। तब सारिम कहने लगा कि आप ये वीडियो देखें। उसने अपने मोबाइल में एक वीडियो दिखाई थी। वीडियो में मैंने देखा कि रात का वक्त था, एक लड़की तुम्हारे घर के दरवाजे से बाहर निकल रही थी। वहां से फासले पर एक गाड़ी थी, वो लड़की उस गाड़ी की तरफ जा रही थी। तभी स्ट्रेट लाइट की रोशनी उस पर पड़ी तो ये देखकर मैं ठटक कर रह गया था कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम थी, क्योंकि तुमने भी वही चादर ओढ़ी हुई थी जो हमेशा तुम घर से बाहर निकलने पर किया करती थी। मैं तुम्हें गौर से देखता था, तुम्हारी एक एक चीज तो मेरे हादसे में महफूज थी। मैं क्यों कर तुम्हें न पहचानता। और फिर काफी देर तक वो उस गाड़ी में बैठकर किसी लड़के से बात करती रही। ये देखकर मेरा खून खौल उठा था। सारिम कहने लगा कि ये कल की वीडियो है। मैं आपकी वजह से भाभी पर नजर रखे हुए था, क्योंकि मुझे भी उनका रवैया अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आपको धोखा दे रही हैं। वो आपसे निकाह करने के बावजूद भी किसी और के साथ राब्ते में हैं। तभी मैंने आपको ये बात बता दी। अब मैं दोनों हाथों में सर थाम कर रह गया था। तुम्हारी बेवफाई ने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया था। तब सारिम कहने लगा कि बेवफाई का जवाब आपको जरूर देना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि आप कमजोर मर्द नहीं हैं, और उनकी हकीकत को जानते हुए आप उन्हें नहीं अपना सकते। उधर से मेरे माँ बाप भी रुखसती पर जोर दे रहे थे। मैंने रुखसती रोकने की बहुत कोशिश की। अपने माँ बाप से कहा कि अभी मैं शादी करना नहीं चाहता, मगर कोई मेरी बात सुनने पर तैयार नहीं था। मुझे तुम्हारी इज्जत भी अजीज थी। मैं चाहकर भी तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बता सकता था। तुमने जो भी किया था, मगर मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था, और मैं तुम्हें किसी के सामने रुसवा कैसे कर सकता था। सारिम ने मुझे बहुत उकसाया कि ये मैं सबको बता दूं,
मगर मैंने किसी को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। और फिर ऐन रुखसती वाले दिन सारिम के कहने पर ही मैंने तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए थे और वजह सारिम को कही कि इसमें यही लिखो कि मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी कर रहे हैं, इस वजह से मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कि सारिम ने उस पर क्या लिखा और उसने तुम्हें मेरे खिलाफ इतना बदजन क्यों किया, मगर अब जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद सारिम तुम्हें पसंद करता था, वो मुझे रास्ते से हटाना चाहता था, तभी उसने ये सारी साजिश रचाई थी। और अब जब मुझे मालूम हुआ कि सारिम तुम्हारे साथ निकाह करने वाला है, तो ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया था। मैं अपने दोस्त के फ्लैट में ठहरा हुआ था जब मेरे दूसरे दोस्त की कॉल आई। उसने बताया कि सारिम की शादी है और तुम कैसे इंसान हो जो अपने भाई की शादी पर भी मौजूद नहीं हो। आंटी की मुझे कॉल आई थी, वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी कि तुम कहाँ हो। अपने दोस्त की बात सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। और जब मैंने उससे शादी की बाकी तफसीलात पूछी तो उसने मुझे बताया कि सारिम की शादी तुम्हारे साथ हो रही है। अब तो शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं रही थी। सारिम ने मुझसे झूठ बोला था, मुझे धोखे में रख कर ये सब किया था और फिर वो सब कुछ हो गया जो मैं नहीं करना चाहता था। मुझे सारिम पर बेहद गुस्सा सही, मगर यार वो मेरा भाई था, मेरा दोस्त था। मैं उसकी जान कैसे ले सकता था। ये जो सब कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उसकी बात सुनकर ईशा अपने बेड पर बैठ गई थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। एक जरा सी गलतफहमी ने उसकी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। शायद सारिम भी सच जानता था कि वो लड़की ईशा नहीं कोई और है, मगर चूंकि उसने जुहेब की नजरों में उसे गिराना था, उन दोनों में जुदाई डलवानी थी, तभी तो उसने ये सारा खेल रचाया था। वो खुद तो इस दुनिया से चला गया था, उसके हिस्से में कुछ भी नहीं आया था।